कमर सीधी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। आंखें कोमलता से बंद। कभी क्लैपिंग करिए अपने लिए। Good morning, respected Dean Sir, faculty members, my fellow NSS volunteers, and the students of Delhi Technological University. With immense pride, NSS DTU, in collaboration with NSS USME, Regional Directorate of NSS Delhi, and Ministry of Youth Affairs and Sports, on this occasion of International Yoga Day, welcome you all to the Yoga Mahotsav. Satmam Yog Ujyate, which defines yoga as the evenness of mind. मन का संभाव ही योग कहलाता है. Coming to the history of International Yoga Day, it is known that our Prime Minister inaugurated the first International Yoga Day on 21st June 2015. Since then, the glory and significance of yoga that has been created in this world is incredible. The theme for International Yoga Day 2022 is Yoga for Humanity, which aims to focus on the significant mental, physical, and emotional strife caused by the pandemic. The aim of the prestigious day of yoga is that it paves the way to spread awareness about the practice of yoga and its holistic approach to physical and mental well being. With the discipline espousing mindfulness, moderation, and perseverance, yoga also encourages people to have a healthy lifestyle. Clearing the old myths, yoga is more than just asanas. It is a means of unlocking our infinite possibilities and power. Now to welcome our chief guest, Madhusudan sir. Sir has been a kind and calm guarding entity for us. We would like to invite you, sir, to give you a token of gesture. Very good morning to all of you, my dear colleague and chairperson of the NSS, Professor Naukant Dev, other colleagues, friends, students, yoga शिक्षक, Divya, ladies and gentlemen. योगा दिवस के शुभ अवसर पे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ. आज के दिन करीब 25 करोड़ लोग योगा दिवस में सम्मिलित होने जा रहे हैं विश्व में. हम सब उसी के भाग हैं और हम सब अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि योगा दिवस के माध्यम से हम सब विश्व को एक साथ लेकर चलने में, एक साथ यूनाइट करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. आप सबको पता है कि ये हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है और इसका भी एक विशेष कारण है. शायद आप सब जानते हैं कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है. तो सबसे बड़ा दिन के अवसर पे आप योगा करके अपने जीवन को भी बड़ा करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ. और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे एनएसएस यूनिट के स्पेशली चेयरपर्सन प्रोफेसर नौकांत देव और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित किया और हम सब आपको ये मौका दिया कि इसमें भाग लें. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for such kind words. Now, starting, I'd like to brief the attendees about a yoga instructor of the event, Ms. Divya Agarwal. She is in the yoga faculty of DTU for the last 4 years. Ma'am is a six-timer gold medalist and Miss Yogini of India 2013 by School Games Federation of India. She is an All India University champion with an international bronze medal in yoga. A certified referee with 16 years of experience in practicing yoga, she is an altogether great personality. Now we would like to invite the Yoga Fusion participants.
Now we have next the common yoga protocol practice that will be conducted by Divya ma'am and the participants on the stage. Now let's begin with the common yoga protocol practice. Good morning everyone. Happy International Yoga Day to all of you. तो सबसे पहले सभी अपनी कमर को सीधा करके बैठेंगे. ये ऐसे हम्प नहीं आना चाहिए. एकदम सीधी कमर, एकदम सीधी. आपका मेरुदंड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी करके बैठिए. जब भी आप बैठते हैं, आप काम कर रहे हैं या खड़े भी हैं, तब भी झुक के नहीं चलना है, हमेशा सीधे रहना है. कमर सीधी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे. आंखें कोमलता से बंद. लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे. तो हम शुरू करते हैं योगिक प्रेयर से. मैं प्रेयर बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराएंगे. आंखें बंद, सांस भरिए, सांस को छोड़िए. संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजिनाना उपासते. दोबारा अपनी सांसों पर ध्यान देंगे. धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे. सभी अब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे. सभी खड़े हो जाइए, पीछे सभी खड़े हो जाइए. सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक, यानी कि नेक रोटेशन, हमारे गर्दन के लिए व्यायाम. सबसे पहले करेंगे नेक अप डाउन. सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर ले जाएंगे. आंखें खुली रहेंगी. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे की ओर. आपकी चिन यानी कि आपकी ठुड्डी आपके कंठकुप से टच होगी. दोबारा से धीरे धीरे दोहराएंगे. सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस को छोड़ते हुए गर्दन नीचे. 2 बार और दोहराएंगे. सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे. 1 बार और. सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे. गर्दन को सामान्य अवस्था में ले आइए. अब हम करेंगे गर्दन की साइड बेंडिंग. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को अपनी राइट साइड झुकाएंगे. कंधा नहीं हिलाना है, आपको कान को ले जाने की कोशिश करनी है कंधे के पास. रोकेंगे 10 सेकंड तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सांस भरते हुए गर्दन सीधी. सांस छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट साइड बेंड करेंगे. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. गर्दन सामान्य अवस्था में ले आइए सभी. इसके बाद करेंगे हम टर्न. राइट साइड टर्न करेंगे सांस छोड़ते हुए. सभी अपने राइट साइड देखेंगे ऐसे टर्न करते हुए. होल्ड करेंगे. ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी. धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दूसरी दिशा में गर्दन को मोड़ेंगे. रोकेंगे. धीरे धीरे रिलैक्स. अब हम करेंगे पूरा ग्रीवा शक्ति विकासक, यानी कि पूरे गर्दन को आपको पूरा रोटेट करना है. नेक रोटेशन. चिन से स्टार्ट करेंगे. चिन को यहाँ से टच करते हुए पूरा घुमाना है धीरे धीरे, जितना स्लो कर सकते हैं आप. वापस से जब आपकी चिन टच होगी, आपका 1 राउंड खत्म होगा. 1 राउंड खत्म करने के बाद उसको आप दूसरी दिशा में घुमाएंगे. ऐसे आपको 4 से 5 राउंड करने हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी और एकदम स्लो घुमाना है. गर्दन को बिल्कुल भी झटका नहीं आना चाहिए. बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप तेज घुमा रहे हैं, एकदम धीरे.
धीरे धीरे रिलैक्स, गर्दन सामान्य अवस्था में। नेक्स्ट हम करेंगे स्कंद शक्ति विकासक यानी कि शोल्डर रोटेशन, हमारे कंधों के लिए एक्सरसाइज। दोनों हाथों को सामने सीधा करेंगे, हथेली आसमान की ओर। अब दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधों पर रखेंगे। अब कोहनियों को आगे से मिलाते हुए पीछे की ओर घुमाएंगे। 5 राउंड। 1, एकदम धीरे। 2, 3, 4, 5। यहीं से दूसरी दिशा में घुमाएंगे। शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। जिनके भी फ्रोजन शोल्डर होते हैं, कंधों में दर्द होता है, शोल्डर स्टिफनेस होती है, वो इस अभ्यास का, इस व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं डेली 5 से 10 राउंड, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में कंधों के समान दूरी बना लेंगे सभी। दोनों हाथ सामने सीधे, हथेलियां एक दूसरे की ओर। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सभी अपने राइट साइड टर्न करेंगे। मैक्सिमम टर्न करना है, जितना आप कमर से घूम सकते हैं। आपको पैर नहीं हिलाना है और पीछे देखने की कोशिश करनी है। रोकेंगे। अब सांस छोड़ते हुए वापस दूसरी दिशा में जाइए, यहीं से पूरा पीछे टर्न। हाँ, इसी को हम 10 बार करेंगे कंटिन्यूटी में, रुकना नहीं है। 1, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे वापस। यस। 2, 3, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सभी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ नीचे समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज के भी बहुत से फायदे हैं। कटी चक्रासन, कटी यानी कि आपकी कमर और जो हम ट्विस्टिंग करते हैं, जिनको भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या लोअर बैक में स्टिफनेस है, वो इस एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा ये प्रोटोकॉल बनाया गया है सब लोगों को देखते हुए, तो इसे सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे चेयर पोज। पैरों में कंधों के समान दूरी बनाइए। दोनों हाथ सामने सीधे, हथेलियां जमीन की ओर। धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए झुक जाएंगे एक कुर्सी की अवस्था में, चेयर पोज। रोकेंगे इसमें 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धीरे धीरे वापस सीधे खड़े हो जाएंगे। इस आसन में शायद कुछ बच्चों को दर्द भी हुआ है। ठीक है, सीधे खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे को मिला लेंगे सभी। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, लॉक करेंगे और हथेलियां आसमान की ओर घुमा दीजिए। अब पूरा कंधों से खींचिए, पहले ऊपर जितना अच्छे से खींच सकते हैं, लोअर बैक से, और आपको कंधों से पूरा स्ट्रेच करना है। अब धीरे धीरे सभी अपनी एड़ियों को उठा लेंगे और रोकेंगे इस आसन में 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से वापस। तो ये आसन बहुत ही लाभदायक है हाइट बढ़ाने के लिए, और ये हमारी बॉडी की मोस्टली सारी मसल्स को स्ट्रेच करता है। अगला हम करेंगे वृक्षासन, फ्री पोज। सभी अपना बैलेंस बनाएंगे अपने राइट लेग पे और अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए अपने इनर थाई पे आपको रखना है। जब आपका बैलेंस बनने लग जाए तो धीरे धीरे दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, नमस्कार मुद्रा में। संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए, एक ही जगह पर ध्यान लगाइए और रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
धीरे वापस, हाथ नीचे, पैर नीचे। इस आसन का अभ्यास दूसरी ओर से भी करेंगे। धीरे धीरे अब दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए, कमर सीधी, एक पॉइंट पर देखते रहिए बैलेंस बनाने के लिए, और धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा में। बहुत बढ़िया, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। तो इस आसन के क्या फ़ायदे हैं ये आपको पता ही चल गया होगा करके। हमारा संतुलन बनाने में, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है, हमारे बॉडी पोस्चर को करेक्ट करता है, बॉडी बैलेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक, सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे सभी। नेक्स्ट हम करेंगे पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंड पोज। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। अब सांस को छोड़ते हुए आपको अपनी कमर से पूरा खींचते हुए आगे की ओर झुकना है। दोनों हथेलियां अपने पैरों के पास रखनी है। एक्स्ट्रा एफर्ट कोई भी नहीं देगा, जितना आपके शरीर से हो पा रहा है आप उतना ही करेंगे। जो पूरी हथेली रख सकता है जमीन पे पूरी हथेली रखेंगे, वरना आप अपने एंकल यानी कि अपने टखने पकड़ के होल्ड कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए रोकेंगे। घुटने सीधे रखने हैं, कोई चीटिंग नहीं करेगा, घुटने सीधे रखने हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। इस आसन में आपकी हैमस्ट्रिंग मसल जो होती है ये पीछे हमारी थाई पे, ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है, फील भी हुआ होगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अर्धचक्रासन, बैकवर्ड बेंड पोज। सभी पैरों में कंधों के समान दूरी बनाएंगे, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे सपोर्ट के लिए। अब सांस भरते हुए सभी पीछे की ओर जाएंगे। ध्यान रखेंगे आंखें खुली रहे, आंखें बंद करोगे तो आपको चक्कर आ सकता है। आंखें खुली रखिए, रोकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे। अपने इंटरनल बॉडी को अच्छे से रिलैक्स कीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। नेक्स्ट हम करेंगे त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। सभी पैरों को खोल लेंगे, अपने राइट लेग को टर्न करेंगे। राइट लेग टर्न करने के बाद दोनों हाथों को खोलिए, हथेलियां जमीन की तरफ। अब धीरे धीरे सभी अपने राइट साइड बेंड हो जाएंगे। अब ऊपर की ओर देखेंगे, दोनों घुटने सीधे। आपको खुद देखना है कि आपका ट्रायंगल शेप बनना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिकोणासन। रोकेंगे इसके आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस यहीं से अपना लेफ्ट लेग टर्न करेंगे और दूसरी ओर आसन को करेंगे। सांस छोड़ते हुए बेंड कीजिए, रोकेंगे, इसी आसन में बने रहिए। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे वापस। तो इस आसन से आपका साइड बेली फैट खत्म होता है, आपके लेग्स की मोस्टली मसल स्ट्रेच होती है। धीरे धीरे अब सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, दोनों पैर सामने सीधे। अब हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करेंगे और आपके जो तलवे हैं यानी कि आपके फुट को एक साथ ज्वाइन करेंगे। कमर एकदम सीधी, दोनों हाथों को उंगलियों को मिलाते हुए लॉक करेंगे और पंजों को अच्छे से ग्रिप कर लेंगे। कमर सभी की सीधी और सीधी कीजिए, पीछे सबकी कमर सीधी और सीधी। आंखें बंद कर लीजिए, रोकेंगे इसी आसन में 10 सेकेंड। 1 2, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने सीधा कर देंगे। अगला आसन हम करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए बैठेंगे अपनी एड़ियों पे। एकदम रिलैक्स होके बैठना है सभी को, एड़ियां पीछे से खुली होंगी, कमर एकदम सीधी, दोनों हाथ आपके घुटनों पे। ये ऐसा एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
इस आसन के अंदर बैठने के बाद आपका खाना 5 से 7 मिनट के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करा कीजिए, एक आदत बनाइए कि खाना खाने के बाद ये आसन करें, अगर आपको वॉक का टाइम नहीं मिल रहा है तब। इसी आसन में कुछ देर बने रहेंगे। कुछ लोगों को शायद घुटनों में थोड़ा सा दर्द भी महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि आप डेली थोड़ा थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड कोशिश करेंगे बैठने की, तो आप डेली ऐसे बैठ पाएंगे। ठीक है, सभी अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए। घुटनों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, शोल्डर लेवल। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन, हाफ कैमल पोज। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखिए सभी, सपोर्ट के लिए। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे, आंखें खुली रहेंगी सभी की। रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। घुटनों के बल ही सभी अभी खड़े रहेंगे। ये था हाफ कैमल पोज यानी कि अर्ध उष्ट्रासन। अब हम करेंगे पूरा उष्ट्रासन। उसमें क्या करना है, आपको दोनों हाथों को साइड से ले जाना है और अपने तलवों को या फिर अपनी एड़ी को ग्रिप करना है। कोशिश करेंगे सभी अपनी एड़ियों को पकड़ने की और गर्दन पीछे एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पेट को पूरा आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए, जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। बैठ जाएंगे वज्रासन में। ये बहुत ही अच्छा आसन है, सर्वाइकल है जिनको, उनके लिए। आपकी गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आसन बहुत ही अच्छा है। जिनको लोअर बैक में पेन है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या थायराइड भी है, वो सभी लोग इस आसन का अभ्यास कीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में बैठे बैठे सभी अपने घुटनों को खोलेंगे, जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हैं घुटनों को। घुटनों को खोलने के बाद अपनी एड़ी पंजों को भी बाहर निकाल देंगे। अब धीरे धीरे सभी दोनों हाथों को सामने सीधा करते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए जितना आगे आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अपनी लोअर बैक से मैक्सिमम स्ट्रेच कीजिए। आपने अभी बैक बेंड का पोज किया यानी पीछे जाने का पोज किया, उसके बाद हमें आगे झुकना ज़रूरी है। हर आसन का काउंटर पोज होता है जिससे हमारी बॉडी में पेन बैठ ना जाए। इसीलिए हम एक ऐसा सिलेबस बनाते हैं कि अगर बैक बेंड का पोज है तो उसके बाद हम फॉरवर्ड बेंड का पोज रखते हैं। इसी आसन में रहेंगे कुछ देर। अपने लोअर बैक से खींचिए पूरा आगे की ओर। इसी अवस्था में बैठे रहेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे वापस आएंगे, बैठ जाएंगे। पोजीशन बैठने की आपकी यही रहेगी, कमर सीधी करके बैठेंगे। अगला हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, पोजीशन यही रहेगी आपकी बैठने की। और हाथों को ऊपर करने के बाद क्रॉस करते हुए हथेलियां आपके ऑपोजिट शोल्डर पे। वेरी गुड। कमर एकदम सीधी, पूरा खींचेंगे, सामने की ओर देखने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे सभी अपने पैर सीधे कर देंगे और एक सामान्य अवस्था में आके बैठ जाएंगे। दोनों पैर सामने सीधे। अगला हम करेंगे वक्रासन। दोनों पैर सामने सीधे, सभी अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे, घुटना ऊपर की ओर। आप डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं अगर ना समझ आए तो। घुटना ऊपर की ओर। अब अपना ऑपोजिट हैंड उठाएंगे सभी। जो पैर आपने फोल्ड किया है उसका ऑपोजिट हैंड। अगर राइट लेग आपने फोल्ड किया है तो आप लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। अब हाथ को घुमाते हुए अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करनी है, ट्विस्टिंग करनी है। ये आपने पकड़ा, उसके बाद दूसरी ओर देखने की कोशिश करेंगे, सभी पीछे की ओर देखेंगे। मैक्सिमम ट्विस्ट, जितना आप मैक्सिमम ट्विस्ट कर सकते हैं। हाँ, गुड। पीछे की ओर देखिए, रोकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। इसी आसन को हम दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। अब अपना लेफ्ट लेग फोल्ड कीजिए, राइट हैंड को उठाएंगे, ट्विस्ट करते हुए अपने पैर को पकड़िए और पीछे की ओर देखेंगे। पीछे वाला जो आपका हाथ है एकदम पीछे, उसको ले जाइए। मैक्सिमम आपको दूर देखने की कोशिश करनी है। वेरी गुड। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 एंड रिलैक्स। एकदम धीरे धीरे वापस। इस आसन के बहुत से फायदे हैं। देखिए जितने भी आपके स्पाइनल ट्विस्टिंग के आसन है, जिसके अंदर भी आपकी बॉडी ऐसे ट्विस्ट हो रही होती है, वो सभी आसन डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और जिनके लोअर बैक में स्टिफनेस है, बॉडी रिजिड है, आप ढंग से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ट्विस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपके लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। दोनों पैर सामने सीधे करके बैठ जाएंगे। सभी यहाँ से दोनों हाथों को आगे रखते हुए पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन की स्थिति में। सभी पेट के बल लेट जाइए। पैरों को पीछे से खोल देंगे, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। हाथ आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, हथेली एक के ऊपर एक। चिन रख सकते हैं अपनी हथेली पे, या फिर गर्दन को राइट लेफ्ट जैसे आपको रिलैक्स फील होता है आप वैसे रख सकते हैं। लेट जाएंगे सभी। पैरों को खोल दीजिए पीछे, सभी और खोलिए पैरों को। अब एड़ियां अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। एकदम रिलैक्स करना है। इस आसन के अंदर बॉडी को स्टिफ नहीं रखना होता है, रिलैक्सिंग पोस्चर है। जितना ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हो उतना। आंखें बंद रहेंगी सभी की। कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा इस आसन का अभ्यास कराया जाता था। इसे मिनी वेंटिलेटर भी बोला गया है। कोशिश कीजिए कि इस आसन को आप डेली अभ्यास करें। इस आसन के अंदर जब आप ब्रीथ करते हैं ना, आपको फील होता है कि आपकी ब्रीथ आपके सिर्फ लंग तक नहीं कर रहे हो, आप सांस भर रहे हो, आपके पूरा पंजों तक जा रही है। आपकी पूरी बॉडी ब्रीथ करती है इस पोस्चर में। इस टाइम पे बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, आंखें बंद रहेंगी और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। आपके पैर, आपके हाथ, आपकी अपर बॉडी और आपकी लोअर बॉडी एकदम रिलैक्स। आंखें बंद, सारा ध्यान सांसों पे, सांसों की गति धीमी। आपका शरीर काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका है, तो हम पहुँचते हैं अब अपने अगले आसन पे। धीरे धीरे सभी अपने पैरों को मिला लेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हथेलियाँ आपके चेस्ट के साइड में, आपकी दोनों हथेलियाँ आपके चेस्ट के साइड में रखेंगे, यानी कि कंधों के नीचे। सांस भरते हुए धीरे धीरे बैकवर्ड जाएंगे पीछे की ओर, भुजंगासन। कोहनियाँ बिल्कुल थोड़ी सी आपकी बेंड होंगी, कंधे खुले हुए, गर्दन पीछे। रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ये बहुत ही लाभदायक आसन है। जिनको भी सर्वाइकल है या साइटिका का प्रॉब्लम है तो वो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सर्वाइकल वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कम से कम इसके 10 राउंड आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। बस ब्रीदिंग का ध्यान रखना है कि सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आसन में वापस आना है। लेटे रहेंगे, दोनों हाथों को पीछे सीधा कर दीजिए, अपनी थाइस के पास ले जाएंगे। हथेलियां थाइस के नीचे ले आइए, आपकी ठुड्डी जमीन पर सीधी। धीरे धीरे सभी पीछे से अपने दोनों पैरों को उठाएंगे शलभासन में। उठाइए जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं। पैरों को देखिए, फोल्ड नहीं करना है, उठाना है। बहुत बढ़िया। रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे वापस। यहीं से सभी अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे घूम के। शवासन की स्थिति में लेट जाइए, पीठ के बल, दोनों पैर सामने सीधे, हाथ आपके साइड में, पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे सेतु बंद आसन। उस आसन के लिए क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करेंगे सभी, एड़ी पंजों में कंधों के समान दूरी, हथेलियां जमीन की तरफ। और जो लोग अपने एंकल पकड़ सकते हैं, यानी कि अपने टखनों को ग्रिप कर सकते हैं, वो पकड़ेंगे। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं वो हथेलियां जमीन पर रखकर ही फोल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे सभी अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाइए, पूरी बॉडी को मैक्सिमम ऊपर खींचिए।
बहुत बढ़िया। और ऊपर खींचिए अपने पेट को, कमर से पूरा खिंचाव दीजिए, रोकेंगे इसी आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपने हिप्स को नीचे लाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ सीधा कर देंगे। इस आसन से आपकी कमर का दर्द ठीक होता है, आपका स्ट्रेस, को एंजाइटी, जो भी टेंशन है, बहुत ज़्यादा इस आसन से फर्क पड़ता है। इसको करेंगे तो एकदम आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा। आपके पेट से संबंधित जो भी बीमारियां, उनके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। आपका अब्डोमिनल पार्ट, आपका लोअर बैक, जो भी आपका आप आसन करते हैं, आपको खुद फील हो जाता है कि हमें कहाँ स्ट्रेच पड़ रहा है, हमें कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, तो उस एरिया पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट पड़ता है। दोनों पैर सीधे रखेंगे। अगला आसन हम करेंगे उत्तान पादासन। उस आसन के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने सीधा रखेंगे, हाथों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, हाथों को अपनी थाई से दूर रखेंगे, कमर से दूर, हथेलियां जमीन की तरफ, एड़ी पंजे मिले हुए। सभी अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 30 डिग्री पर, जमीन से थोड़ा सा ऊपर। देखिए 90 डिग्री नहीं बनाना है, 30 डिग्री, जमीन से थोड़ा ऊपर। रोकेंगे, पेट को टाइट रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे धीरे वापस। ये आसन देखने में बहुत ज़्यादा इजी और बहुत सरल लगता है, और पैरों से ज़्यादा प्रभाव आपके पेट पे पड़ रहा होगा पक्का। तो इस आसन का भी अभ्यास आप डेली करिए। बहुत ही अच्छा आसन है वेट लॉस के लिए, स्पेशली पेट की चर्बी को कम करता है ये आसन। आपकी कोर मसल जो होती हैं उनको टाइट करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद हम करेंगे अर्धहलासन। अब आपको लेके आना है पैर अपने 90 डिग्री पे, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, 90 डिग्री पर लेके आएंगे, एकदम घुटने सीधे, पंजे खींचे हुए, हथेलियां जमीन की तरफ, और आपकी गर्दन एकदम रिलैक्स। पीछे से हिप्स नहीं उठाने हैं, रिलैक्स रहना है। अर्धहलासन में सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। रोक के रखेंगे इसी आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे वापस। इस आसन के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन उल्टा चलता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव भी होता है। आपके पैर क्योंकि ऊपर की ओर उठ जाते हैं, तो आपका ब्लड फ्लो पैरों से नीचे की ओर आता है। ये आसन आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद करेंगे हम पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे सभी अपने दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करते हुए घुटनों को चेस्ट के पास लेके आएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे, और अपनी ठुड्डी को अपने घुटनों पर टच करेंगे। जिन्हें भी सर्वाइकल की दिक्कत है या नेक में कोई इंजरी है, वो लोग अपनी गर्दन सीधी जमीन पर ही रखेंगे। बाकी सभी जिनको टच करेंगे, पंजों को क्रॉस नहीं करना है। रोकेंगे इस आसन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे। इस आसन का फायदा इस आसन के नाम में ही है, पवन मुक्त आसन। आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा गैस होती है, ये उसे बाहर निकालता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। डाइजेशन इम्प्रूव करता है ये आसन। आपकी लोअर बैक की मसल स्ट्रेच करता है। तो इस आसन का अभ्यास भी आप डेली कर सकते हैं, बहुत ही सरल आसन है। दोनों पैरों में गैप बनाएंगे थोड़ा, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद। हाथ उठाने नहीं है, हथेलियों का रुख सिर्फ आसमान की ओर, हाथ जमीन पर ही रहेंगे सभी के, पैर सीधे रहेंगे, आंखें बंद। शवासन। शवासन शायद ये सभी का फेवरेट आसन है, ये सब डेली करते हैं। सारा ध्यान इसमें सांसों पर देंगे, सांसों की गति एकदम धीमी।
आपके सभी आसन्स हो गए हैं। हम इस पोस्चर के अंदर अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद करके सिर्फ सारा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे। एकदम धीरे धीरे इनहेल और एकदम धीरे धीरे एक्सहेल। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। अपने शरीर का एक एक पार्ट हम एकदम ढीला छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स। आपने अभी जो भी आसन्स करे, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर पेन फील हुआ होगा। जिनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है उनको स्पेशली। तो अब ये फील करना है आपको इस आसन के अंदर कि आपका वो बॉडी पार्ट रिलैक्स हो रहा है। उस बॉडी पार्ट को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, एकदम ढीला, एकदम लूज। माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर धीमी सी मुस्कान। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे, ठंडी हवा को महसूस करेंगे, अपने ब्लड सर्कुलेशन को फील करेंगे। अपनी बॉडी को अवेयर करेंगे अब उठने के लिए। धीरे धीरे सभी दाएं या बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठेंगे। कमर सीधी, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। कमर एकदम सीधी रखिए। गुड मॉर्निंग। अगला हम करेंगे कपालभाति। कमर एकदम सीधी, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। कपालभाति में हमें क्या करना होता है, लंबा गहरा एकदम श्वास भरना होता है, चेस्ट एकदम एक्सपेंड करना होता है। लंबा गहरा हमने श्वास लिया, उसके बाद हमें सांस को सिर्फ छोड़ना होता है प्रेशर से सांस छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे एक राउंड में 30 स्टॉक करें। 30 बार रैपिडली ब्रीथ करना है, एक्सहेल करना है। ठीक है, धीरे धीरे सभी एक साथ सांस भरेंगे। स्टार्ट। एक्सहेलेशन फोर्सफुली। आपका पेट अंदर और बाहर की ओर आपको फील होना चाहिए कि आपकी नाभि का हिस्सा पीछे आपकी कमर को छू रहा है। आप इतना अच्छे से प्रेशर दे रहे हैं। सांस लिया, उसके बाद आप सिर्फ सांस को छोड़ेंगे। पेट अंदर बाहर चलता रहेगा। जब आप थक जाते हैं तो आप रुकेंगे। थोड़ा सा आपको लोअर बैक में पेन भी फील होता है इसको करते हुए, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो इसलिए जब थक जाएंगे तो रुक जाएंगे और दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर दोबारा से सांस भरेंगे और सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। फोर्सफुली एक्सहेलेशन। प्रेशर से सांस छोड़िए एकदम। धीरे धीरे रिलैक्स। इसके बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। एकदम धीरे सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे अपनी बॉडी को इंटरनली रिलैक्स करने के लिए। कपालभाति। कपालभाति में क्या है, कपाल का मतलब क्या होता है, हमारा स्कल। यह हमारे को यहाँ से रिलैक्स करता है। और जितने भी आपके कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जुकाम है आपको, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रेशर से सांस छोड़ना होता है। अच्छे से प्रेशर देना होता है कि आपकी नाभि का हिस्सा आपको पीछे कमर पे टच फील हो। ठीक है, अगला हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी अपने राइट थंब को अपनी राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे।
बंद करेंगे और राइट से सांस को छोड़ देंगे। बेसिकली करना क्या है, एक नाक से सांस को लेना है, दूसरे नाक से सांस को छोड़ना है। और इसमें ना, इस प्राणायाम के अंदर सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये कपालभाति नहीं है, इसमें आवाज़ नहीं चाहिए हमें। तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आंखें बंद होंगी सभी की। कोशिश करेंगे कि 4 सेकंड लगाएं सांस लेने में और 8 सेकंड लगाएंगे सांस को छोड़ने में। हमें दुगना समय लगाना है सांस को छोड़ने में। दुगना समय क्यों लगाते हैं? जिससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़े, फेफड़ों की क्षमता बढ़े। तो एकदम धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देते हुए 4 सेकंड लगाएंगे सांस लेने में, 8 सेकंड लगाएंगे सांस को छोड़ने में। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 1 से 2 मिनट तक बंद आंखों के साथ। खुली आंखों के साथ तो आप कर नहीं पाएंगे, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। तो कोशिश करिए बंद आंखों के साथ मन ही मन अपने सांस को देखने की कोशिश करें कि आप कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस को छोड़ रहे हैं। कमर सीधी रखनी है। इस प्राणायाम के बहुत से फायदे हैं और ये ऐसा प्राणायाम है जिसे सभी लोग कर सकते हैं। आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है स्ट्रेस रिलीव करने में, एंजाइटी रिलीव करने में, माइंड को रिलैक्स करने में, लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में। धीरे धीरे रिलैक्स, सभी अपने हाथ नीचे रखेंगे। अगला हम करेंगे शीतली प्राणायाम। कमर सीधी करके बैठिए। शीतली प्राणायाम क्या होता है? कूलिंग प्राणायाम काउंट होता है। जब भी ये गर्मी के मौसम में आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी बॉडी को ये कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इस प्राणायाम के लिए कमर सीधी, दोनों हाथों को घुटनों पर रख सकते हैं या फिर अंजलि मुद्रा बना सकते हैं। धीरे धीरे अपनी जीभ को फोल्ड करेंगे सामने की तरफ, एक होल की तरह आपको बनाना है। अब अपनी जीभ के थ्रू आप सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद मुंह को बंद करेंगे और चिन लॉक लगा के होल्ड कीजिए। अब धीरे धीरे गर्दन सीधी करेंगे और अपनी दोनों नोज से सांस को छोड़ना है। इसका एक राउंड और करेंगे। जीभ को फोल्ड कीजिए, पूरा अच्छे से इनहेल लीजिए। मुंह बंद, यस, मुंह को बंद कीजिए। रोकेंगे और गर्दन सीधी करते हुए दोनों नोस्ट्रिल से सांस बाहर। रिलैक्स। अगला हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों घुटनों से अपने दोनों कानों को बंद करेंगे। पहले आप मुझे सुन लेंगे वरना मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो पहले सुन लीजिए। अपने दोनों घुटनों से आपको अपने दोनों कान बंद करने हैं। पहली उंगली यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी आंखों पर, दूसरी उंगली आपकी नोज पर, तीसरी उंगली आपके अपर लिप पर और चौथी उंगली आपकी लोअर लिप पर। ये पोजीशन होगी और ये देखना है कि आपको बाहर की कोई आवाज़ सुनाई ना दे। लंबा गहरा श्वास भरना है। 5 राउंड करेंगे हम हमिंग साउंड के, भंवरे के समान गर्दन के अंदर चांट करना है। स्टार्ट करेंगे सांस भरने के बाद।
धीरे धीरे रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम हमारे माइंड को तो रिलैक्स करता ही करता है। बाकी जिन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है वो इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर कीजिए। ये आपके एंगर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद फील होगा कि आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो रहा है। उसके बाद जब आप आंखें खोलते हैं आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास आप डेली कर सकते हैं। अगला हम करेंगे ध्यान। तो ध्यान के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। इस पोस्चर में नहीं बैठना है कि आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, आप ज़बरदस्ती बैठे हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आप रिलैक्स होकर बैठिए एकदम। कमर सीधी, दोनों हाथ आप कैसे भी अपने घुटनों पर रख सकते हैं, अंजलि मुद्रा में रख सकते हैं, जैसे भी आप रिलैक्स फील करते हैं। आंखें बंद रहेंगी सभी की। सारा ध्यान आपकी सांसों पे। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, बहुत से बुरे विचार आते हैं। हम बिना विचारों के बिना तो बैठ ही नहीं सकते। हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हर इनहेल के साथ जब भी आप सांस भर रहे हैं अच्छे विचारों को अडेप्ट करें, और हर बार सांस छोड़ने के साथ यानी कि एक्सेलेशन के साथ बुरे विचारों को मन से बाहर निकाल दें। आपने आज जितने भी आसन किए, प्राणायाम किए, जो भी व्यायाम किए, मन ही मन उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। सभी की आंखें बंद रहेंगी। नेचर को, आसपास की ग्रीनरी को, इसको फील करना है आपको। ठंडी हवा को महसूस करना है। जिन्हें भी आप मानते हैं उनका ध्यान करेंगे मन ही मन। आपके ईष्ट देवता या आपके गुरु, जिन्हें भी आप मानते हैं, या आपके माता पिता, उनका ध्यान करेंगे। प्रार्थना करेंगे खुशहाल और स्वस्थ जीवन की। धीरे धीरे सभी मन ही मन अपना ध्यान लाएंगे अपने आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र क्या होता है? जिस एरिया में हम बिंदी लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में और दोनों के बीच में, मन ही मन उस एरिया को देखने की कोशिश करेंगे। सांसों पे ध्यान। मेरे पीछे पीछे सभी मंत्र को दोहराएंगे। पहले सभी अपनी सांसों को सामान्य स्थिति में लाएंगे। आंखें बंद रखनी है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। हम करेंगे शांति मंत्र। मेरे पीछे एक एक लाइन को दोहराएंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै,
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जिन्हें भी आप मानते हैं उनका ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे अपने स्वस्थ और खुशहाल जीवन की। जो भी आप अपना नेक्स्ट वर्क करने वाले हैं उसके लिए अपनी बॉडी को अवेयर करेंगे। आंखें बंद रहेंगी। धीरे धीरे सभी अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। अच्छे से रब कीजिए, अच्छे से घर्षण करना है। जब आपको आपकी हथेलियां गर्म लगने लगे धीरे धीरे उन्हें आंखों पर रखेंगे। कुछ देर हथेलियों को आंखों पर ही रखिए, उस वार्मथ को फील कीजिए। आंखों पे रखने के बाद पूरे चेहरे पर फेरते हुए हाथों को रिलैक्स। धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे एक बारी। लास्ट हम करेंगे लाफिंग थेरेपी, हास्य क्रिया। ये सबसे अच्छी चीज है। इस टाइम पर सभी को खुलकर हंसना है, कोई नहीं शर्माएगा, सबको अच्छे से हंसना है। दोनों हाथों को उठाते हुए, दोनों हाथ नीचे, आगे झुकेंगे थोड़ा। रेडी, मेरे 3 काउंट पे 1 2 3। दोबारा 1 2 3। एक लास्ट काउंट 1 2 3। सभी क्लैपिंग करिए अपने लिए बड़े अच्छे से। प्रेशर पॉइंट दबने की अच्छे से टाइट। दोनों हाथों को शेक करेंगे सभी ऊपर से नीचे की ओर। हाथों को साइड में चलाएंगे, नमस्ते बनाएंगे। धन्यवाद। Advisor Anamika ma'am on stage to facilitate Divya ma'am a token of gratitude and the performers as well. Can we have a round of applause for Divya ma'am for her performance? And can we now call the performers on stage?